Urological problems are affecting millions of people across India, affecting their kidney health, prostate issues, urological problems, and so much more. The second most common cancers among men in India. So, if I have to talk about the factors, doctor, so what are the key factors that really, can lead to prostate cancer? PSA, complete examination और MRI. PSA का फुल फॉर्म क्या है? इस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. प्रोस्टेट कैंसर में 3 नमूने के ट्रीटमेंट है. क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो कम्प्लीटली मिटाता है कैंसर, इसमें सर्जरी है और इसमें रेडियोथेरेपी है. पैलिएटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम कंट्रोल करते हैं जो फैला हुआ कैंसर है, उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट रहता है. सो डॉक्टर, इंडिया में आज ट्रीटमेंट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, एआई भी आ चुका है. सो क्या एआई का कोई बेनिफिट आ रहा है? कैंसर के नाम से कई लोग डर जाते हैं. कितना मेंटल वेलनेस सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे पेशेंट्स? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव. नमस्कार, मैं हूँ आपकी एंकर पूजा और आप सभी का यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है. Urological problems are affecting millions of people across India, affecting their kidney health, prostate issues, urological problems, and so much more. अगर आप पेशेंट हैं या केयर गिवर हैं या केवल हेल्थ कॉन्शियस हैं, then this podcast is exactly for you. इस पॉडकास्ट से आपको मिलेगी ढेर सारी नॉलेज और प्रैक्टिकल टिप्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. एंड इन टुडेज पॉडकास्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टच करने वाले हैं. दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स अमंग मेन इन इंडिया. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में. एंड टू एजुकेट अस मोर एंड टू ड्रॉ मोर लाइट अबाउट प्रोस्टेट कैंसर, वी हैव अमंगस्ट अस अ वेरी लीडिंग यूरोलॉजिस्ट इन इंडिया, Dr. Pradeep Rao, who's currently associated with the Glen Eagles Hospital, Parel in Mumbai. Dr. Pradeep, welcome to our Euro Wellness podcast. Thank you, Pooja. Thank you for having me on the show. Great. The pleasure is all ours, sir. आगे बढ़ते हैं. इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में एज अ डॉक्टर, एंड इफ देयर वाज एनी इंपॉर्टेंट केस दैट रियली मूव्ड यू और मोटिवेटेड यू to really bring in more awareness about prostate cancer and urological problems. Oh, I've always been interested in urology. My father was a senior general surgeon and urologist, and the first doctor in the community where he started practice in Dombivli. And I grew up there, always wanted to be a surgeon. And once I did my surgical training, I realized that urology is the part which fascinates me the most. Okay. Since then, I've been a urologist. As I was training in urology, laparoscopy and robotics became more and more popular. Just about the time that I finished my medical school, the operation to cure prostate cancer was devised. Okay. Till that time, there was no surgical treatment for prostate cancer. Urologists actually got a Nobel Prize for 70 years back for showing how to treat prostate cancer medically. Okay. So this was an inspiring thing for me, and it's one of the few cancers, if detected early, can be completely cured. And that, for me, is very important to give a complete cure to patients. That's why I like treating prostate cancer. Wow. I'm totally inspired, Doctor, knowing about your journey. So let's deep dive and get to the topic, Doctor. Sure. My first question to you is that, Doctor, I've heard prostate cancer is also called as a silent disease, especially in its early stages. So I just wanted to know a little more about So the way the prostate cancer develops, it develops normally in the peripheral zone of the prostate, which is not on the side where you pass urine from. And that is why when it starts growing in the body, there are no symptoms. But fortunately for us, there is one simple blood test which will give us an indication if the prostate cancer is beginning to grow. And that's called a PSA. So just by doing a blood test, you can ensure whether that you're not having any prostate cancer and that there's no cancer growing in your body. So, Doctor, how common is prostate cancer across men in India? It's one of the commonest cancers that we see in men. It was not so common, I would say, 25 years back when I started practice. But off late, we are seeing it much, much more. And it's one of the commoner cancers in men. Okay. So if I have to talk about the factors, Doctor, so what are the key factors that really, can lead to prostate cancer, especially, with factors like age, family history, lifestyle, etc.? So first is prostate cancer is, of course, a disease of aging. At a certain age, beyond the age of 80 or 85, it may even be just one of the consequences of aging and not be significant. It's a very low-grade cancer. Familial factors are very important. It runs in families. If there's one gentleman who has prostate cancer, then his brothers, his male children, and his brother's male children are all at risk because it runs within families. Right. And then, of course,
one of the reasons we are seeing an increasing incidence of prostate cancer, which we never saw earlier in India, is change to a Western type of diet with increased amount of animal fat in the food, smoking and tobacco, which are very important risk factors for any cancer and also for prostate cancer. And environmental factors which we may not sense, like use of pesticides, use of odd chemicals and exposure to environmental chemicals, including pollution. All these lead to an increasing incidence of things like prostate cancer. Okay, so clearly diet and lifestyle plays a very vital role in prostate cancer. So doctor, if I look at this age group of 40s and 50s, like what is it that they really need to look at in terms of prevention, any screening? So, prostate cancer usually we see beyond the age of 50. It's very few people who have it before the age of 50. It's there before the age of 50, but very small number. Okay. What we do is, what I would suggest to people, younger people in their 40s and early 50s, is avoid any exposure to tobacco, no smoking, no tobacco chewing, any sort of exposure to tobacco is bad for you. A healthy lifestyle is good for you. Having foods kissed by the sun, which have lycopenes, which are protective against prostate cancer. Any food which is brightly colored, like peppers, like tomatoes, these are all protective against prostate cancer. Okay. So stuff with lycopenes. Fresh fruits, fresh vegetables is a way to go. Have a lot of this in your diet and avoid any bad environmental factors. So doctor, you spoke about health, lifestyle. अब ओबेसिटी की बात अगर करते हैं, कहते हैं ओबेसिटी से सारी बीमारियां लिंक्ड है. सो ओबेसिटी, डायबिटीज, क्या इसमें कुछ लिंक है प्रोस्टेट कैंसर के साथ? सो डायबिटीज का तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन ओबेसिटी का डेफिनेटली है. इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर. लेकिन ये क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, वेस्टर्न डाइट जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, एनिमल फैट जो इंक्रीज हो रहा है डाइट में, फास्ट फूड जो इंक्रीज हो रहा है, जंक फूड, ये सबसे ओबेसिटी होता है जी. और ओबेसिटी में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा बोलते हैं. बिल्कुल. कौन सा इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी की, योर बैड लाइफस्टाइल एंड डाइट, इट्स ओपन टू डिस्कशन. लेकिन दोनों के कारण डेफिनेटली प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है. बिल्कुल. सो यूं कहें कि लाइफस्टाइल का अगर ध्यान दिया जाए शुरू से, तो कहीं हद तक प्रिवेंशन हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का. सो डॉक्टर, किस तरह के अर्ली वार्निंग साइंस है जो हमारे पेशेंट्स, व्यूअर्स को पता होने चाहिए, जिससे कई बार इग्नोर कर जाते हैं उस तरह के वार्निंग साइंस को? जैसे आपने बोला इनिशियली, ये साइलेंट डिसीज तो है, तो ज्यादा वार्निंग साइन नहीं है. लेकिन आपको अगर कोई यूरिनरी सिम्टम है तो वो बहुत महत्व का होता है. आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, एक PSA टेस्ट करा लो. अगर आपको यूरिनरी सिम्टम है भी नहीं तो भी एनुअली हम PSA टेस्ट रिकमेंड करते हैं. एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, ज्यादा महंगा नहीं है. हम लोग रेगुलरली रिकमेंड करते हैं एवरी ईयर. आप हर साल में एक बार करो और उसका ट्रेंड फॉलो करो. नॉर्मल रिपोर्ट भी ना देखो, लेकिन ट्रेंड फॉलो करो. अगर वो स्लोली राइज हो रहा है तो डेफिनेटली आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो. अगर ऑलरेडी थोड़ा हाई लगता है तो यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो जी. और यूरोलॉजिस्ट एक बार एग्जामिन करेगा, उनको DRE कर देगा जी. पता चलेगा कि चांस है क्या कैंसर का. ऐसा नहीं है कि PSA बढ़ गया है यानी आपको कैंसर है जी. थोड़ा है PSA तो 15 से 20% चांस रहता है कैंसर होने का. ज्यादातर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज PSA दूसरे कारणों से भी बढ़ जाता है. लेकिन चेक करना जरूरी है, बिकॉज 15-20% तो सिग्निफिकेंट चांस है. सो डॉक्टर, टेस्ट की बात कर रहे थे, तो मैंने सुना है और भी कई तरह के टेस्ट अवेलेबल है. सो कौन सा रेकमेंडेड है? एक PSA सुना है मैंने, बायोप्सी सुना है, क्या करेक्ट? तो अगर PSA हाई है जी, या हम लोग जो उंगली से तपास करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि को, वो अगर हमको पॉजिटिव लगे जी, ये दोनों चीज में से कोई भी हो तो हमें MRI कर देंगे. ओके. और ये 3 टेस्ट जो है हमारे डायग्नोसिस के मेन स्टे रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर में. ओके. PSA, उंगली का एग्जामिनेशन और MRI जी. ये 3 हम जांच के देखते हैं. अगर ये तीनों में हमको कोई सस्पिशन लगा तो हम बायोप्सी एडवाइस करेंगे. बायोप्सी एक छोटा ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसके लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है. आउट पेशेंट प्रोसीजर है जो OPD पे करते हैं. ओके. और आजकल हमारे एडवांस्ड बायोप्सी मशीन है जिसमें हम MRI का CD लोड करते हैं. इसको फ्यूजन बायोप्सी बोलते हैं. इसके थ्रू हम लोग एग्जैक्ट टारगेट कर सकते हैं जो स्पॉट में हमको लगता है कैंसर है जी, तो वही हम बायोप्सी करेंगे और उसमें से हमको डायग्नोसिस रेट बढ़ जाता है. सो टेस्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए थी. लोगों को आमतौर पे डर होता है इस तरह की एग्जामिनेशन कराने के लिए. क्या वजह है कि लोग हिचकिचाते हैं? ये उंगली का एग्जामिनेशन में थोड़ा दर्द होता है, ऐसा महसूस करते लोग. अगर आपके यूरोलॉजिस्ट अच्छे हैं और केयरफुल है तो मिनिमम दर्द होना चाहिए.
इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और ये सिर्फ करेंगे अगर जरूरत है। अगर पीएसए पड़ा हुआ है या कुछ शंका हो तो करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। बिल्कुल। सो डॉक्टर, पीएसए की बात कर रहे थे, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं पीएसए का फुल फॉर्म क्या है? और मैंने देखा है कई लोग ब्लड टेस्ट कराने से भी डरते हैं, सो पीएसए कराना क्यों जरूरी है, और अगर इसे नहीं किया जाए तो इस तरह उनके क्या लॉन्ग टर्म पीएसए इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये नॉर्मल हार्मोन है जो हमारे बॉडी में रहता है। इसका माइनर फंक्शन रहता है और ये नॉर्मली प्रोस्टेट सिक्रीट करता है। जब भी कैंसर होता है प्रोस्टेट में तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब भी इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो बहुत कारण है इसका बढ़ने का सिक्रीशन। लेकिन ये इसके साथ हम मॉनिटर कर सकते हैं कैंसर है नहीं है। कैंसर ऑपरेशन के बाद भी ये पीएसए से मॉनिटर करते हैं कि वापस आ गया है कि नहीं आया। अभी अगर आप टेस्ट नहीं करते कभी, एक आध बार हमने देखा है आदमी आता है नॉर्मल पीएसए 4 तक रहता है। मैंने पेशेंट को 1000 पीएसए के साथ देखा है, जब भी पूरा कैंसर फैला होता है बॉडी में जी। उनका पहले बार पीएसए किया था उन्होंने एट द एज ऑफ 65। अगर वो 50 पे करते हैं, हमको जल्दी स्टेज में मिल जाता, पूरा क्योर हो जाते हैं। बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जल्दी हम लोग कैंसर पिकअप करें तो जल्दी प्रॉपरली 100% क्योर हो सकता। बिल्कुल। इसी बात पे एक किस्सा याद आया डॉक्टर। मैं एक फैमिली से मिली थी जिसमें फादर को प्रोस्टेट कैंसर था, तो उनके बेटे पूछ रहे थे कि क्या करें ट्रीट से। उन्होंने ये सुझाव दिया सिर्फ उनको पीएसए टेस्ट करना है एज 45 के बाद। बिल्कुल, हर साल, और कुछ नहीं। और नॉर्मल आदमी जिनका फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर नहीं है उनको 50 के बाद। सो यूं कहा जाए 45 फॉर पीपल जिनके यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, एंड 50 के बाद से सर साल में एक बार ही करना होगा? साल में एक बार ही करना है, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली, थैंक यू डॉक्टर। सो प्रिवेंशन की बात करते हैं ना, आपने ट्रीटमेंट की भी बात करी। एनीथिंग स्पेसिफिक जो प्रिवेंटिव मेजर हमें लेना चाहिए कम समय से? फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, गुड डाइट, स्टे अवे फ्रॉम टोबैको। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं डॉक्टर। सो ट्रीटमेंट के बाद के भी कुछ साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं लोगों में, तो क्या इस तरह के साइड इफेक्ट्स का क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर में 3 नमूने के ट्रीटमेंट रहते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो कंप्लीटली मिटाता है कैंसर, इसमें सर्जरी है और इसमें रेडियोथेरेपी है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम कंट्रोल करते हैं जो फैला हुआ कैंसर है, उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट है, तो इंजेक्शन और टैबलेट रहता है। अभी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सर्जरी के साइड इफेक्ट, सर्जरी हम देखते हैं उसमें ट्राइफेक्टा बोलते हैं हम, 3 आउटकम ढूंढते हैं सर्जरी में। एक कंप्लीट कैंसर कंट्रोल, दूसरा यूरिन का कॉन्टिनेंस यानी कंट्रोल ऑफ यूरिन, और तीसरा सेक्सुअल फंक्शन रिस्टोर करना। प्रोस्टेट कैंसर दूसरे कैंसर जैसा नहीं है, इसका सर्जरी इक्वली एब्लेटिव है और इक्वली फंक्शनल है। यानी कि एक कैंसर निकालने का काम हो गया, दूसरा हमको फंक्शन रिस्टोर करना है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि में यूरिन कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन दोनों रहते हैं। तो ये एक बार हम निकालते हैं, हमको ये दोनों चीज रिस्टोर करना पड़ता है। तो हमारा ट्राइफेक्टा जो रहता है प्रोस्टेट कैंसर में, कैंसर कंट्रोल, कॉन्टिनेंस एंड पोटेंसी। तो इसमें कैंसर कंट्रोल तो अच्छा ही करते हैं क्योंकि हम लोग चेक करके ही ऑपरेशन करते हैं कि ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टिनेंस वो सर्जन का एक्सपीरियंस के हाथ में रहता है, जितना कॉन्टिनेंस हम वापस करें। इसमें अगर पेशेंट को डायबिटीज या कुछ हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ये कंट्रोल आने को यूरिन का, लेकिन पूरा कंट्रोल 1 महीने तक आ जाना चाहिए जी। और सेक्सुअल फंक्शन हम सब पेशेंट में रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। जिनका कैंसर अर्ली है और जो फैला नहीं है थोड़ा भी लोकसरी, तो उनको नर्व हम प्रिजर्व करके सेक्सुअल फंक्शन भी वापस दे सकते। ओके, सो डॉक्टर, इंडिया में आज ट्रीटमेंट्स में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, एआई भी आ चुका है। सो क्या एआई का कोई बेनिफिट आ रहा है इन दीज ट्रीटमेंट्स टुडे? एआई का बेनिफिट है डायग्नोसिस। ओके, हमारे काफी नोमोग्राम्स है जो एआई चेक करेगा, हम लोग डाल देंगे पीएसए है, ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग है, तो उसमें वो दे सकते हैं कि इतना चांस हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर आने, तो उसमें हमारा फायदा होता है। एंड ये तो ज्यादा ही ज्यादा यूज होते रहेगा एज वी गो फॉरवर्ड। सो डॉक्टर, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है या नहीं। सो आपने कितनी सारी सर्जरीज के बारे में बताया, लेजर सर्जरी, रोबोटिक्स, कई सारे एडवांसेस हो चुके हैं, तो उस बारे में अगर आपको जानना। आजकल प्रोस्टेट कैंसर के लिए ज्यादातर रोबोटिक सर्जरी होता है। अच्छा, मैं लैप्रोस्कोपी भी करता था बहुत पहले 20-25 साल पहले से जी, लेकिन आजकल रोबोटिक अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं रोबोट अवेलेबल है, तो रोबोटिक सर्जरी होता है। यहाँ हमारे पास तो सबसे लेटेस्ट रोबोट अवेलेबल है और इसमें सर्जरी आसान हो जाती है और पेशेंट का रिकवरी भी बहुत जल्दी होता है जी।
तो रोबोटिक सर्जरी सबसे अच्छा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। आज पेशेंट को 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है इतना मेजर सर्जरी के बाद, और 5 दिन के बाद हम कैथेटर निकाल देते हैं, तो पेशाब नॉर्मली कर देते हैं। ओके, तो रोबोटिक सर्जरी सबसे अच्छा चीज़ है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बीमारी अगर हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ का सलूशन है। और यही मेरा अगला क्वेश्चन है सर कि कैंसर के नाम से कई लोग डर जाते हैं, तो कितनी मेंटल वेलनेस की ज़रूरत है, कितना मेंटल वेलनेस सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे पेशेंट्स नहीं, बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। मैंने बहुत देखा है कि जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है उसका रिकवरी जल्दी हो जाता है जी। ये एक चीज़ है। उससे आप कैंसर के बारे में बोले, प्रोस्टेट कैंसर ऐसा चीज़ है जो बहुत फैला है तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जो स्टेज 4 बोलते हैं, स्टेज 4 में आए पेशेंट, मैंने पेशेंट को देखा है 800,000 पीएसए के साथ आते हुए, उसको पूरा दवाई से ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने क्योर कर दिया है। जो अभी 8, 10 साल, 15 साल भी कैंसर वापस नहीं आया और दवाई भी बंद कर दी। तो इसमें आजकल जो मेडिसिन आ गए इतने इफेक्टिव है प्रोस्टेट कैंसर में, जो हमारे पास 15-20 साल पहले नहीं थे। आज इतने इफेक्टिव प्रोस्टेट कैंसर की दवाई है कि पेशेंट को इवन एडवांस डिसीज में हम लोग कंट्रोल करके क्योर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को मैं बोलता रहता हूँ कि आप जल्दी ट्रीटमेंट करा दो, जल्दी डायग्नोसिस करा दो तो अच्छा है, लेकिन बाय चांस अगर मिस हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सब पेशेंट को आगे आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसलिए। एब्सोल्युटली, सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ एक सही पॉजिटिव डॉक्टर से भी संपर्क करें। सो क्लियरली प्रदीप जी हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस कि हर एक चीज का ट्रीटमेंट है, सो घबराइए नहीं, सही टाइम पे डॉक्टर को संपर्क करें, अपनी जांच पड़ताल करें और सही टाइम पे ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर, एनी अदर मैसेजेस दैट यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स regarding prevention, cure, anything about prostate cancer? One blood test once a year leads to very easily curable prostate cancer. So this is one disease you can take out of your mind as long as you're doing a blood test once a year. डॉक्टर ने एकदम सरल भाषा में कह दिया, एक सिंगल ब्लड टेस्ट एंड सिंपल स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विद फ्रूट्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड अवे फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस एट द यूरो वेलनेस पॉडकास्ट। बहुत सारी जानकारी मिली आपसे एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बेनिफिट मिला है। एक सिंपल PSA टेस्ट इज ऑल यू नीड आफ्टर द एज ऑफ 45. गेट योर एनुअल चेकअप right till the age of 50 and more, and that's all that you really need. Executive checkups be available here, that's all covering all your PSA tests, so please is checkup ka labh uthaएं, lead a healthy lifestyle, eat well, keep working out, and that's all you need to ensure that you have a beautiful life ahead. And with that, once again, thank you very much, doctor. Thank you. And I'm sure all our viewers can stay tuned in for more such information on urology, on prostate cancer, on our channel that's available on YouTube, Instagram, Spotify, and Apple Podcasts. Euro Wellness Podcast की तरफ से आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपकी एम पूजा। धन्यवाद।